मेरे जो दोस्त हैं, my partners in crime, ladies and gentlemen, Abdul Rauf Saab and the legend himself, Salim Malik Saab is here, and today India is playing against Australia, and India का जो road trip है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. They beat Australia by 6 wickets, October 8th को चेन्नई में. They beat Afghanistan by 8 wickets, October 11th को दिल्ली में. They beat Pakistan by 7 wickets, October 14th को अहमदाबाद में. They beat Bangladesh by 7 wickets, October 19th को पुणे में. They beat New Zealand by 4 wickets, October 22nd को धर्मशाला में. They beat England by 100 runs, October 29th को लखनऊ में. They beat Sri Lanka by 302 runs, 2nd November को मुंबई में. They beat South Africa 243 runs, November 5th in Kolkata. They beat Netherlands by 160 runs, 12th in Bengaluru. They beat New Zealand by 70 runs in Mumbai. So here's the thing, India का जो road to फाइनल लग रहा है वो बड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. Let's take a look at Australia's road to final. Their first match they lost to India by 6 wickets, October 8th Chennai. Their second match they lost to South Africa by 134 runs, यानी कि वो already 2 matches behind थे on October 12th in Lucknow. They beat Sri Lanka by 5 they beat Sri Lanka by 5 wickets on October 16th in Lucknow. They beat Pakistan by 62 runs on October 20th in Bengaluru. They beat Netherlands by 309 runs October 25th in Delhi. They beat New Zealand by 5 runs on October 28th in Dharamshala. They beat England by 33 runs on November 4th in Ahmedabad. They beat Afghanistan by 3 wickets. What a thrilling match that was, on November 7th in Mumbai. They beat Bangladesh by 8 wickets in Pune. November 11th ko they beat South Africa by 3 wickets. 16th and November 16th ko Kolkata mein. So they have reached the final. They've taken these two teams have taken their final places at the ICC 2023 Men's World Cup. Let's go to Salim Malik Saab. Salim Malik Saab, very convincing, very convincing road to the final for India, and very convincing for and very uplifting for Australia as well. आज इन दोनों का मैच हो रहा है. What do you think, sir? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं I'm good. You look nice. You look very nice. आप काफ़ी नर्वस हो गए थे जब कुछ हमने आपको बताया. क्या बताया था? आप कह ही दें, प्लीज कह दें. ये आपसे रहा नहीं जाएगा, मुझे पता. कहीं ना कहीं आप बोलेंगे. But anyway, so tell me, what do you think? सर भाई देखें, मेरा ख्याल कोई भी ग्राउंड ऐसी नहीं है जो उन्होंने छोड़ी हो जीतने के लिए. हाँ, हर जगह. I was watching सलमान खान का एक क्लिप, वो टाइगर 3 की जो उनकी सक्सेस पार्टी थी, तो उसके अंदर वो बेचारा थोड़ा अपसेट लग रहा है. कह रहा है इंडिया की वजह से कोई मैचेस की वजह से कोई फिल्म देखने नहीं जा रहा. इवन दो इट्स अ हिट फिल्म, बट कोई फिल्म देखने नहीं जा रहा. बिग बॉस भी नहीं देख रहे लोग. हाँ, everyone's talking about cricket. They saw a jump 128% कल, लेकिन आज मेरा ख्याल वो इस तरह से नीचे जाएगा, बिकॉज वर्ल्ड कप. मेरे फादर, I don't know if he's watching this right now or not, but मेरे फादर जो कभी क्रिकेट नहीं देखते, कल बाकायदा उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार कल मैं भी ना क्रिकेट मैच देखूंगा. And I'm like, okay, this is news to me, because ये क्रिकेट फीवर उनको भी हो गया. तो this is unbelievable. मैं कल ना एक दोस्त है बॉब, इंडिया के पुराने एक्टर हैं वो. ओके. मेरे इंग्लैंड में उनसे आज से कोई 35 साल पहले की दोस्ती है. ओके. तो उनकी कॉल आई, पहले तो रिकॉर्ड लगाया, यार सॉरी पाकिस्तान नहीं आया. तो मैंने कहा आप छोड़ दें, कोई और बात करें, मैच देखने जा रहे हैं. तो कहते हैं यार कल तो पूरा इंडिया बंद होएगा और पूरे इंडिया में छुट्टी होएगी. मैंने कहा चले यार, गुड लक. तो यहाँ वहाँ आपको पता है आज तो उनके लिए ईद का दिन है, दिवाली है उनके, आज फाइनल है उनका. हाँ, और आई थिंक वो सोचे भी बैठे हैं कि ये कप उनका है. ऑब्वियसली देखें जिस पेस से वो गए हैं इस टूर्नामेंट में, ठीक है ना, किसी मैच में भी ऐसा नहीं लगा कि वो इस मैच में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इस मैच में स्ट्रगल करेंगे. कोई तो बुरा दिन उनका आएगा आज, मगर पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देखो कि वो स्मूथली हर मैच में निकल गए हैं. ट्रू. किसी एक आध जगह थोड़ा सा वो उनको स्ट्रगल किया. अच्छा, बाय द वे, अगर आप कॉल करना चाहते हैं और मिच के बैट लेना चाहते हैं, आखिरी मौका है, तो आप कॉल कर सकते हैं. जी सर, क्या कहते हैं आप?
जी बिल्कुल, सलीम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और इंडियन नो डाउट के इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे आप जो चेक करें, ये सारे स्टार्ट्स निकाल के बैठा, आप चेक करें, ये मुसलसल वही कर रहा था, कोई और काम नहीं है इसको। स्क्रोलिंग एकदम, देखो यार क्या है। हाँ जी जी सर बोलिए। सबसे स्ट्रांग टीम इंडिया, जैसे कोई मैच नहीं आ रहा। मगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने जो कमबैक किया है वो बहुत स्ट्रांग कमबैक किया। पहले दोनों मैचेस आ रहे हैं, इंडिया से आ रही है और उसके बाद साउथ अफ्रीका से आ रही है। उसके बाद अभी तक इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं आ रहा। एक मैच उनका बहुत क्लोज हुआ जो कि वन साइडेड जा सकता था अफगानिस्तान के खिलाफ, मगर जिस तरह मैक्सवेल ने वो इनिंग खेली है वो उसने टोटल वर्ल्ड क्रिकेट का एक सिनेरियो ही चेंज कर दिया। वो हिस्टोरिकल इनिंग थी। सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई चेंज नहीं हुआ वर्ल्ड क्रिकेट का सिनेरियो। वो एक इनिंग थी जो सारी उम्र याद रखी जाएगी। वो अब कोई अगर चाहे भी तो वो इनिंग्स नहीं खेल सकता। आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन अगेन। अच्छा, मुझे जो सबसे जो पसंदीदा चीज़ ऑस्ट्रेलिया में उनका जो कैप्टन है, उनकी बॉडी लैंग्वेज। मैं आपको पहले मैच से कह रहा हूँ कि मुझे आज मैं ये राज खोल देता हूँ कि नहीं क्यों पसंद है। सर शक्ल मिलती है और कोई बात नहीं। मैं आपको बता, आप पैट कमिंग्स को देख लें और आप फास्ट बॉलर है, और फास्ट बॉलर है। सबसे बड़ी बात ये कद भी वैसे ही है। अच्छा, इसको कोई बैट्समैन पसंद नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, हमेशा सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए मुझे सिवाय सईद अनवर के, सिवाय सईद भाई के। सईद भाई फिर वाचिंग दिस, सईद भाई ये आपके फैन है, हम सब आपके फैन है, लेकिन अदर देन यू इनको कोई बैट्समैन पसंद नहीं आया। अदर देन सलीम भाई ये देखा, ये बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट। सईद अनवर देखे ना, एक्सेप्शनल, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पता नहीं, एक नेचुरल होता है ना, आपको भी पसंद होगा कोई, मुझे सईद भाई पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद था यार, मैं उसके नहीं, हम सबको बहुत पसंद, बहुत इनिंग्स खेली हैं और क्या ग्रेट प्लेयर था। क्योंकि मुझे ना जब वो पाकिस्तान की टीम में नहीं आए थे तो उस जमाने में एक विल्स कप होता था, शायद आप खेलते होंगे, आपके डिपार्टमेंट्स, हम छोटे होते थे स्कूल में। जी जी, आप बाज मेमोरीज होती हैं आपके, आप बचपन में याद रह जाती हैं स्कूल से। तो उसमें मैंने एक मैच देखा था, फाइनल पीआईए का और ZTBL का था शायद, मेरा ख्याल है। उसमें सईद भाई ने पीआईए के खिलाफ सेंचुरी की थी और आतिफ रऊफ ने की थी। तो वो जो इनिंग थी ना, उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वसीम अकरम वगैरह कोई लोग इस तरीके से भी मार सकते हैं और खेल सकते हैं। मगर जिस तरह सईद भाई ने वो इनिंग खेली है, उसके बाद से, यानी कि पाकिस्तान टीम में आने से पहले ही हम उनके फैन थे। तो वो बॉल क्या स्विंग नहीं हो रहा था उस मैच में? उसमें हो रहा था, मगर जो वो खेल रहे थे ना वो एक्सेप्शनल था। अच्छा, मैं आपको ना उसकी एक पैट कमिंस की एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ। There you go, that's it. वो कह रहे हैं कि आई स्टिल डोंट फील लाइक वी हैव प्लेड द कंप्लीट गेम। कहता है कि आई स्टिल डोंट फील लाइक वी हैव प्लेड द कंप्लीट गेम। अभी तक उसने कोई कंप्लीट गेम नहीं खेली इस टूर्नामेंट। हमें सबको आती है तर्जुमा करना बहुत जरूरी। जी जी। Knowing that we don't have to be at our absolute best to challenge any team. Okay. We can find a way through it, and all the boys draw a lot of confidence from that going to tomorrow. यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी तक मेरे ख्याल में हमारे जो लड़के हैं, जो उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके मुताबिक उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में अपनी एबिलिटी के मुताबिक कोई गेम नहीं खेली। हाँ। और जो कल गेम आ रही है ना इंडिया, आज यानी कि जो आज मैच होगा हाँ। इंडिया के खिलाफ, हाँ। वो कह रहा है कि मैं उसमें हम अपना एक डिफरेंट चीज़ दिखाएंगे आपको, जो हमारी नेचुरल गेम है, और हम अपनी एब्सोल्यूट गेम खेल कर दिखाएंगे इस टूर्नामेंट में। और आई थिंक इफ देयर इज एनी टीम जिसके बारे में मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, आप न्यूजीलैंड का कहते थे, मैंने हमेशा ऑस्ट्रेलिया कहा है कि इफ देयर इज एनी टीम व्हिच कैन बीट इंडिया, दैट कैन बी ऑस्ट्रेलिया। अदर देन ऑस्ट्रेलिया आई डोंट सी एनीबॉडी बीटिंग देम। देखें, जो फाइनल है, मेरा ख्याल है ये जो रऊफ कह रहे हैं, जो पढ़ा है अभी रऊफ ने कलमिया, ये देखें, ये हर टीम जो फाइनल में आएगी वो तो देखें ना, इस वक्त उसका तो डू एंड डाई, उसने तो दुनिया में जब भी कभी नाम लिखा जाएगा उसका। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। डू एंड डाई सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के लिए और डू एंड डाई सिचुएशन है इंडिया के लिए भी, बिकॉज ये वो वर्ल्ड कप है जिसमें इंडियन सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और ऑस्ट्रेलिया अपने आप को प्रूव करेगा इस बात के लिए कि उसने अभी तक अपना बेस्ट गेम नहीं खेला। कि आज वो दिन होगा इंडिया के लिए या आज वो दिन होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। तो कुछ जरा स्टैट्स पे तवज्जो दे लेते हैं। आज के जो ग्राउंड है उसका स्टैट्स क्या है, और 17 मैचेस अहमदाबाद के स्टेडियम के अंदर खेले गए हैं। जिन्होंने पहले बैट किया है वो टीम 53% उसकी जीत का औसत रहा है। जिन्होंने पहले बॉलिंग की है उसका 47% जीत का औसत रहा है। यहाँ हाईएस्ट टोटल 365 पे 5 है, जो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया था। यहाँ का लोएस्ट टोटल जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज है, 85 पे 10 खिलाड़ी आउट थे। हाईएस्ट चेज जो हुआ है वो पाकिस्तान इंडिया का है, 319 पे 7। लोएस्ट डिफेंडेड टोटल जो है वो 219 पे 9, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका।
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो मैचेस की हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से है। 13 मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए हैं। 5 इंडिया ने जीते हैं, 8 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। 83 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने 2 मरतबा ग्रुप स्टेज पे मैच खेला, दोनों ने एक एक मरतबा जीता। 162 रन से फतेह हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने, और सेकेंड ओकेजन पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 118 रन से हराया। 1987 में ये फिर दोबारा 2 मरतबा मिले और दोनों ने एक एक मैच जीता। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 1 रन से हराया, सेकेंड क्लैश में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 56 रन से शिकस्त दी। 1992 में ऑस्ट्रेलिया 1 रन से जीत गया। 1996 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 16 रन से हराया। 1999 में ऑस्ट्रेलिया ने 77 रन से फतह हासिल की। 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल के अंदर हिंदुस्तान को उसी 2003 में 125 रन से शिकस्त दी। 2011 में क्वार्टर फाइनल था, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी। 2015 में सेमीफाइनल था, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 95 रन से शिकस्त दी। 2019 में इंडिया ने 36 रन से शिकस्त दी। 2023 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पूल मैचेस के अंदर अक्टूबर 8 में 6 विकेटों से हराया। तो ये टोटल स्टैट्स हैं। लुक्स लाइक थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी है, बट इट कैन बी एनी। अब किसकी बारी अगली लग रही है इसके साथ? देखिए, मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मैं शुरू दिन से एक ही बात कह रहा हूं कि आई थिंक इंडिया को इस जगह शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। ये अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, बट मैं इंडिया की बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूँ। आप इंडिया की टीम की बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से उनके कॉम्बिनेशंस हैं, और जिस तरह से उन्होंने प्रूव किया है अपने आप को, न सिर्फ बैटिंग में, बॉलिंग में, बल्कि फील्डिंग के शोबे में भी, तो आई थिंक वो अनमैच्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आज देखने को मिलेगा। आई विश कि ऐसा नेल बाइटर किस्म का मैच हो एंड मे द बेस्ट टीम विन। ऑस्ट्रेलिया जीतता है या इंडिया जीतता है, आई थिंक क्रिकेट वर्ल्ड कप का फीवर जो है वो चारों तरफ बोल रहा है। बट मेरा अपना ख्याल है, मुझे लगता है इंडिया जो है विल बी विक्टोरियस टुडे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतर टीम जो आपको नज़र आई है वो इंडिया ही आई है। मतलब आपने रऊफ हंस रहा है और रऊफ भाई की टीम्स बदलती रही हैं, इंडिया के खिलाफ देखिए ऑस्ट्रेलिया फिर भी इस टूर्नामेंट में मैच हारी है, दो मगर इंडिया एक मैच भी नहीं हारी और कंसिस्टेंट उनकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती गई है। तो मेरा ख्याल है, और फिर ये भी देखना होता है कि टूर्नामेंट में कौन सी टीम सबसे बेहतर खेल रही है। इसमें कोई शक नहीं। मैं अब थोड़ी सी रऊफ की टीम की भी तारीफ कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया नीचे से आई है, मगर बात यह है कि इस टूर्नामेंट में मेरा ख्याल है हर चीज़ जो है वो सूट करती है इंडिया को। आप कंडीशन से लेके उनकी होम ग्राउंड, क्राउड, हर चीज़ जो है वो उनको सूट करती है। और बकौल उसके हमारा जो लड़का है, बॉल भी उनको सूट करता है तो हर चीज़ जो है आप अगर देखें, हालांकि बॉल वाली बात सलीम भाई शुरू आपने की थी, मगर आप थोड़े से लेट हो गए। कोई बात नहीं, वो हम नहीं, वो आपसे कहा होगा उन्होंने, आपको देख के सोचा होगा। वो वाली बात जो है ना, वो आपने 2 कंट्रोवर्सीज बड़ी मेजर शुरू की थी जिसका उस वक्त किसी को पता ही नहीं था। और वो कौन कौन सी? एक तो जो हमारे चीफ सेलेक्टर थे उनके बारे में, और दूसरा जो रिजाइन कर गए, और एक ये बॉल वाला। ये सबसे पहले इन्होंने बताया था, मगर वो इस तरह हाईलाइट हो नहीं सकी जिस तरह होना चाहिए। That's okay, कोई बात नहीं। वो साहिर भाई के एक्चुअली वो सही एक्सप्लेन नहीं कर सका। वो साहिर भाई जब हमारे साथ वो अपना कोई करना चाह रहे हैं ना, आपकी और मेरे साथ, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं नहीं, आप कह रहे थे ना 1 घंटे का प्रोग्राम आपके साथ करना है, आपके साथ करना है। वो तो हम करेंगे, but that'll be different though. That'll be very different. अच्छा, उसमें नहीं मेंशन ना, नहीं, वो you don't have to worry about that. हमारे अवाम कुछ भी, कोई दुनिया के अवाम कुछ भी देखते हैं हम। Anything, हम मक्खी के बारे में बात कर लें। I'm not kidding, seriously, हम मक्खी के बारे में बात करें, ये भी देखेगा इस सामने जो बैठा है। ये तुम कभी मोबाइल छोड़ दिया करो बेटा, इसके बगैर भी जिंदगी है। मोबाइल एक तरफ रखो, अब सांस लो, जोर सांस लो। इसका मोबाइल ला के मुझे देना, जरा ला दो, मुझे ला दो, ये मोबाइल मुझे ला दो, ये मोबाइल। और बेटा आपको सांस लेना है, मोबाइल के बगैर जिंदगी है, सांस आता है। बेटा मुझे मोबाइल दे दें लाके, आज सामने से आ जाए, कोई मसला नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मैं बच्चों को ये बताऊं कि हम मोबाइल के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं। ये मैंने आपको मोबाइल ले लिया, ये मैंने यहां रखा है, शुक्र करो तुम्हारी बीवी ने नहीं लिया। असल प्रॉब्लम तब आता है जब उसे पासवर्ड पता होता और ये तुम्हारा मोबाइल उसके हाथ लगता। एक कॉलर है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आपका नाम?
सर मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आमिर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी आमिर क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहता हूं कि अपनी क्रिकेट की इस बार परफॉर्मेंस बहुत लो रही है, बहुत ज्यादा। तो मेरे मुताबिक ये है कि हमारी अपनी कुछ सिलेक्शन की कुछ गलती हैं जिसकी वजह से ये मामलात हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, सरफराज, अगर ये 3 प्लेयर वर्ल्ड कप में होते तो शायद आज हम फाइनल में होते। अच्छा, मैं ये सलीम भाई और इनसे पूछता हूँ रऊफ भाई से कि क्या ऐसा हो सकता है, अम्माद वसीम, मोहम्मद आमिर एंड सरफराज, अगर ये 3 प्लेयर्स हमारे साथ होते तो हम वर्ल्ड कप में होते? इज दैट ट्रू? देखिए सरफराज तो हो सकता है क्योंकि वो करंट क्रिकेट खेल रहा है, काज़िम ट्रॉफी में 3rd हाईएस्ट स्कोरर आपका, उसने सिंध को चैंपियन बनवाया काज़िम ट्रॉफी का, कराची को। मगर ये दो बाकी दो हैं, ये अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, इनका तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना भी चाहिए, क्योंकि आप टीवी चैनल्स पर बैठे हुए, आपका मेजर जो प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है, आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपने उसका एक मैच भी नहीं खेला और आपके कॉन्ट्रैक्ट साइड पे हैं, तो उसके बाद फिर मेरी तो समझ से बाहर है कि लोग कैसे उनके बारे में बात करते हैं कि इनको पाकिस्तान के लिए कंसीडर किया जाए। अच्छा, उसका एक और रीजन है कि हमारे पास चॉइसेस नहीं है ना, और चॉइसेस नजर भी तो नहीं आते ना। वो जैसे सलीम भाई कहते हैं नहीं साहिर भाई, चॉइसेस हैं, ये सिर्फ पता नहीं है ना। हाँ, पता है, वही आप जो कहते हैं, मैं वही बात कर रहा हूं कि जब तक आप जो दिखाएंगे तो जो अवेलेबल चॉइसेस होंगी, अवाम वो डेप्थ नहीं जानते कि मुल्तान से आजकल कौन स्कोर कर रहा है, या कराची से कौन स्कोर कर रहा है, बलूचिस्तान से कौन स्कोर कर रहा है, उकाड़ा से कौन स्कोर कर रहा है। अवाम ये नहीं जानते, अवाम को वो खबरें नहीं मिलती, अवाम को वही खबरें मिलती हैं जो दी जाती हैं। सर नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, मगर बात जो रऊफ ने की है बिल्कुल ठीक ही है। देखिए आमिर की वो बात कर रहे हैं, आमिर रिटायर हो चुका हुआ है, पिछले आमिर रिटायर हो गए, रिटायरमेंट ले ली थी आमिर ने। और प्लस दूसरा अमाद की जो बात कर रहे हैं, अमाद देखें वो सीरीज ही नहीं है क्रिकेट के साथ। अगर आप लोग चूँकि फॉलो नहीं करते, अगर आप इस वर्ल्ड कप में ही देखें, आपके यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही थी, अगर आप सीरियस होते क्रिकेट के साथ और अपने साथ, तो आप जाके टीवी पे नहीं बैठते, आप जाके ग्राउंड में परफॉर्म करने की कोशिश करते, क्योंकि ये वर्ल्ड कप आखिरी इसके बाद क्रिकेट तो ख़त्म नहीं होनी थी ना, इसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो अगर आप सीरियस होते तो आप ऑस्ट्रेलिया की तैयारी करते कि ठीक है यार, मुझे इस टूर्नामेंट में मौका नहीं मिला तो मैं अगले टूर्नामेंट के में जाऊंगा। सलीम भाई एक कॉल ले लेता हूँ, कॉल के बाद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? जी मेरा नाम अबू बकर, मुल्तान से बात कर रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? मेरा सलीम मलिक साहब से सवाल है कि शान मसूद साहब तो इंजर्ड हो गए, तो फिर उनकी जगह टीम का नया कप्तान कौन होगा? सर आप रखें फोन, और वो टक्कर भी सरफराज से हुई है। मतलब क्या इन्होंने कहा अगर वो इंजर हो गया तो? इंजर्ड हो गए कह रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इंजरी ऐसी है जिसकी वजह से वो जा नहीं सके। उसकी जगह फिर चेयरमैन साहब खुद ही जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने सिलेक्ट किया है। नहीं, लेकिन ऑन सीरियस नोट, अगर खुदा न करे ऐसा होता है तो देन व्हाट? देखें अब तो सिलेक्शन, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसी इंजरी है जिसकी वजह से इंजरी हुई है। लेकिन पता असल में साहब मसला क्या होता है, इसके पीछे जो हिडन मोटिव्स होते हैं ना आपके, हाँ। वो हमारी समझ से हमेशा से बाहर हैं। अभी ये जो लास्ट बात कर रहे थे ना कि ये इसकी आमिर की और इसकी अमाद वसीम की, और ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इतना ये ज़रूरी नहीं है, हम फर्स्ट क्लास के लिए। क्यों नहीं ज़रूरी यार? ये एक जो क्रिकेट होती है ना, प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है, उसके लिए डेडिकेशन होती है, उसके लिए जहाँ भी वो खेलता है उसके रिकॉर्ड्स उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मैं मिसबा को क्यों क्रेडिट देता हूँ? मिसबा पाकिस्तान का कैप्टन था, मिसबा इंग्लैंड से आया डायरेक्ट, अगले दिन सुई गया, इसका मैच था हमारे साथ फैसलाबाद में, वो उसी डेडिकेशन के साथ वो मैच खेल रहा था, वो फर्स्ट क्लास का अपने डिपार्टमेंट हुई गया इसकी तरफ से। ये होती है डेडिकेशन। और इस तरह आपको क्रिकेट, ये हमारे सामने सलीम भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने कभी पाकिस्तान का मैच नहीं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, नहीं खेला। मेरी 39 ईयर्स एज थी, मेरी 696 फर्स्ट क्लास विकेट्स थी। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पेशली लिखा कि मुझे सिर्फ 4 विकेटों के लिए 2 मैचेस ने फर्स्ट क्लास के, मैं खेलना चाह रहा हूं। यानी कि जब आप किसी भी जगह पे आप कोई पोजीशन आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं ज़कार अशरफ साहब से कहता हूं कि इन्होंने अभी रिटायरमेंट नहीं लिए, आप इनको अब भी 2 मैचेस दे सकते हैं ना। व्हाई नॉट? मैं आपको बता रहा हूं, आपको अब भी मिल सकते हैं मैचेस, आप खेल सकते हैं अब भी। फर्स्ट क्लास मैच के लिए इनको 2 मैचेस दिए जाएं ताकि इनकी 700 विकेटें कंप्लीट हो जाएं, बिकॉज यू नो ये फर्स्ट क्लास का एक रिकॉर्ड होगा, इनके लिए भी होगा, पाकिस्तान के लिए होगा। तो प्लीज़ इनको आई डोंट नो ज़कार अशरफ साहब तक ये बात जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन ये वाला क्लिप निकाल के आप जरूर वायरल करें। ही नीड्स 2 मैचेस टू प्ले। अगर आपने जो कुछ भी हमारे बोर्ड ने किया इनके साथ, इनके करियर के साथ, वो एक अलग बात है, लेकिन दिस कैन बी अ फेदर इन योर कैप। ये आपकी बड़ाई
भलाई हो सकती है कि आप इनको 2 मैचेस वो फराहम कर दें फर्स्ट क्लास के, ताकि ये खेल के अपने रिकॉर्ड को बना सकें। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। All right, जी, once again, welcome back. So let's go to सलीम भाई। सलीम भाई, आप जवाब देना चाह रहे थे उस बात हाँ का? नहीं, वो उन्होंने पूछा था कि कप्तान किसको होना चाहिए। हाँ जी। एक्चुअली होता क्या है कि अभी तो टीम अनाउंस नहीं हुई, मेरा ख्याल अभी नहीं अनाउंस हुई ना, नहीं अभी बस होने वाली है। तो वो उसमें फिर ऑटोमेटिक चॉइस होती है, जो वाइस कैप्टन होता है उसको बनाया जाता है। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनके पास तो लिस्ट होगी कि किसको अगला कप्तान बनाना है, लिस्ट किसको होगी मतलब? लिस्ट बना के रखते हैं ना ऐसे लोग जो। नो, बट व्हाट अबाउट द वाइस कैप्टन? बिकॉज एक चीज ये भी आई थी, चूंकि रिजवान नायब कप्तान थे, तो रिजवान को भी बनाया जा सकता था। और नहीं, मैं तो इस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ ना। Okay. ये तो वर्ल्ड कप के लिए थे ना, अब तो चेंज हो गया, आके चीज़ें चेंज हो जाएंगी ना। जैसे कप्तान तो Obviously. बाबर थे और शान को बना दिया गया, तो शान के साथ कोई तो वाइस कैप्टन होगा ना, तो वो ऑटोमेटिक चॉइस होती है। अगर टूर पे होता तो शायद उसने कप्तानी करनी थी। ओके। मगर चूंकि अभी टूर स्टार्ट नहीं हुआ, अगर वो अनफिट होगा तो इनके पास लिस्ट एक पड़ी होती है कि किसको बनाना है, तो उसमें से किसी को बना देंगे। जैसे ये अभी चीज़ें देख रहे हैं आप, तो लिस्ट ही है, ये लिस्ट वाली चीज़ें आ रही हैं जो आप देख रहे हैं ना, किसी को कुछ लगा दिया, किसी को कुछ लगा दिया, ये लिस्ट ही होती है। जो 2-3 माह का टर्न्योर होता है ना, उसमें लिस्टें होती हैं। तो कप्तान की तकर्री कौन करता है? देखिए, मुझे बोर्ड ये करेगा। सारा सर अजीबोगरीब एक खिचड़ी पकी नजर आती है। ना चेयरमैन का पता चलता है, ना जो उसने आगे मैनेजमेंट कमेटी बनाई है उनका पता है किधर से आए हैं, उसके बाद जो आगे तक कर रही हैं उनका नहीं पता। देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस पे जाना तो फिर आप जाएं, जो जिस तरह सलीम भाई सामने बैठे हुए 100 टेस्ट मैच, 300 वनडे वाले हैं, इस तरह के लाए ना फिर सारे। हाँ। अगर इन लोगों को आप साइड पे करते हैं, आपने एजुकेशन देखनी है, क्वालिफिकेशन देखनी है, तो फिर स्पोर्ट्स एजुकेशन लाएं कि इनकी बताएं पब्लिक को कि ये जो अपॉइंटमेंट्स की है इनकी कहा यह क्या जा रहा है कि qualification ये तकर्रियां जो हैं इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट की तरफ चली कैसे जाएगी। होगी। देखे ना कि आप कैसे एक एक कॉल लेते हैं, एक कॉल लेते हैं, फिर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक कैरियर। आपके दोनों गेस्ट सलीम मलिक साहब और रऊफ साहब को भी मेरी तरफ से सलाम। बहुत शुक्रिया जी सर, क्या कहना चाहते हैं? एक तो मैं आपका शो फॉलो कर रहा हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त प्यार है। Thank you. कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू, थैंक यू। आपकी एनर्जी शो में नजर आ रही है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर, ठीक है, तो हमें अपनी वो जो चीज है उसको जो मॉडर्न एज की क्रिकेट है उसके साथ लाने की जरूरत है। अच्छा, मैं अभी इससे पहले कि मैं इनकी तरफ जाऊं, मैं एक वाकया आपको बताना चाहता हूं जो मुझे अभी इन्होंने कोट किया है। बल्कि आप ही बता दीजिए, वो सचिन वाला वाकया, जब वो वर्ल्ड कप खेल के आए थे तो उसके बाद वो रणजी ट्रॉफी खेलने अगले दिन पहुंच गए थे। मैं सिर्फ अपनी राय देना चाहता हूं, उसके बाद ये दोनों देंगे। मुझे लगता है तारिक के असल प्रॉब्लम हमारे यहाँ मॉडर्न या ओल्ड क्रिकेट का नहीं है। प्रॉब्लम है प्रैक्टिस का, प्रॉब्लम है डेडिकेशन का, प्रॉब्लम है क्रिकेट एक्चुअली खेलने का। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, जब तक आप फेस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी फिटनेस पे तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आप एक लॉन्गर उसकी तवज्जो नहीं देंगे, तब तक आप चीज़ें नहीं कर सकेंगे। तो मैं पहले इनकी तरफ आता हूं, फिर उसके बाद हम पिच कंडीशंस पे बात करेंगे। सर देखें, बिल्कुल आपने जिस तरह एग्जांपल दी, हमारे ये प्लेयर हैं इनका कोई वैल्यू नहीं है। ये 2-2 4-4 मैचेस आते हैं, खेलते हैं, चले जाते हैं। मगर ये पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको ये प्रायोरिटी देने को तैयार नहीं होते। दूसरी जानिब आप देखें कि जो सचिन तेंदुलकर हैं, वो वर्ल्ड कप खेलने के बाद अगले दिन रणजी ट्रॉफी के मैचेस में पहुंच जाते हैं, तो वो अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतनी प्रायोरिटी देते हैं। इसी वजह से तो वो ग्रेट्स कहलाते हैं। उनके सब प्लेयर इसी तरह हैं। हमारे क्यों नहीं बनते? पुराने 2-4 नाम है, उसके बाद हमारा डेडिकेशन ही खत्म है। ना हमारा कोई रिकॉर्ड होल्डर है, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना कोई किसी और स्पिन बॉलिंग के शोबे में। तो हम पीछे इस वजह से जा रहे हैं कि हम अपनी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको प्रायोरिटी नहीं देते। हम जब तक अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम स्ट्रगल करते रहेंगे। अच्छा जी, जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस वक्त पिच पे संजय मंजरेकर वगैरह बाकी लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और ये पिच के बारे में बात हो रही है। ये वही पिच है जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर यूज़ हुई थी। नॉट नेसेसरली मीन्स कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी, या ये भी इट्स ऑल पॉसिबल कि अगर ये लो स्कोरिंग मैच ना रहे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ये वही पिच है जो इस्तेमाल की गई थी इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या कंडीशंस हो सकती हैं? नहीं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सहर भाई, पिच कोई भी हो, मगर बनानी तो है ना। अब उस पर अगर आपने ग्रास ही नहीं छोड़ना और उसको
क्लीन शेव कर देनी है, ऊपर शीशा मारना है, तो वो ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगी। और अगर उसने आपने उसको डिफरेंट सर ड्यू फैक्टर कितना काउंट करेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होता है रात को और जाहिर है बॉल जो होती है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ड्यू फैक्टर का। Okay. अगर बहुत ज़्यादा टर्न बनाई हुई तो फिर मेरा ख्याल है वो बॉल तो टर्न करेगा। ये हो सकता है थोड़ा कम करे, पर मेरा ख्याल है इसमें फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इंडिया की कोशिश होगी टॉस जीते, पहले बैटिंग ले, पहले बैटिंग पहले करे। बैटिंग और ले। बैटिंग अभी तक वो टॉस हारा कोई नहीं है। हाँ आई थिंक हारा है किसी जगह, एक हारा ये है। 9 हारा में से है। मेरा ख्याल शायद एक टॉस हारा है। हाँ हाँ। तो सो अभी लेट्स गो विद दैट ना। अगर फर्ज करें इंडिया आज टॉस हार जाता है और वो पहले बॉलिंग करता है तो कितने पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को? देखिए ऑस्ट्रेलिया को 270 से कम पे आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 270 ऑस्ट्रेलिया की टीम ये वाली बैटिंग लाइन कर जाती है जिसमें ऊपर से मिचेल मार्श हैं और वार्नर हैं, उसके बाद ट्रेविस हेड हैं, और उसके बाद जो नीचे लेबोशेन और स्मिथ हैं, ये मेरा ख्याल है इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, इन्होंने कोई बड़ा स्कोर इस टूर्नामेंट में नहीं किया। तो जो इंडियन बॉलिंग है उसमें है कि एबिलिटी है कि वो उनको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मगर अगर 270 प्लस रन कर गए ऑस्ट्रेलिया वाले तो अंडर लाइट, जिस तरह आपने बात किया कि टेम्परेचर शाम को गिर जाता है, उसके बाद ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है, जो सीम उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो वो जो सीम बॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा हेल्प आउट करना शुरू हो जाता है और उसमें बॉल स्किट होना शुरू हो जाती है। इसमें चाहे आप जितनी भी स्पिन विकेट बना लें, मगर जब वो ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होगा तो उसमें आपके जो मॉइस्चर आएगा उससे जो आपके और फिर सीमर्स इंडिया हैं इंडिया उनको इंडिया के लिए जैम्पा एक फैक्टर साबित हो सकते हैं सेकंड इनिंग्स के अंदर। सेकंड इनिंग के अंदर हो सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, मगर second की। ज्यादातर होगा वो जो उनके फास्ट बॉलर हैं There you go. जो पहले 10 ओवर करेंगे, यार, वो उनके- इम्पैक्ट सर डालेगा। नहीं, ये कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी हेजलवुड। ऑस्ट्रेलिया के लिए जैम्पा करेगा, बाकी नहीं करेंगे। Look at Adam Zampa, 95 मैचेस, 164 विकेट्स, 14 रन्स जो इन्होंने वो किए। इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है 5 for 35, so that's pretty decent actually. तो but yeah, इनके पास जैम्पा एक है, उनके पास 3 है। सर, उनके पास ये याद कुलदीप यादव रखिएगा, है। इस मैच में अगर कोई फर्क डाल सकता है ना तो वो मैक्सवेल ही है ऑस्ट्रेलिया में। you think? देखें उनके पास 3 स्पिनर खेलेंगे, हाँ खेलेंगे, जो बिल्कुल मुझे खेलेंगे। लग रहा है कि क्योंकि वो कभी भी फास्ट बॉलर के लिए विकेट नहीं बनाएंगे, हाँ। जो मर्जी हो जाए। हाँ। वो लेकिन सर इन्हीं विकेट्स पे सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इन्हीं विकेट्स पे शामी ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, इन्हीं विकेट्स पे बुमराह को आप नहीं खत्म कर सकती। यही विकेट्स हैं और इन्हीं विकेट्स पे मैं आ रहा हूं, आपके भाई की तरफ आ रहा हूं। कमिंग्स एंड हेजलवुड इज आल्सो रियली गुड। सो फास्ट बॉलर्स ने अपना अपना किरदार तो निभाया है ना। नहीं, मगर अच्छा मेरी तरफ देख रहे थे कि क्या हो गया, आप फास्ट बॉलर की बात नहीं कमिंस का नाम ही नहीं आया, हेजलवुड का नाम नहीं आया। हेजलवुड का नाम नहीं है, स्टार्क का नहीं है। नहीं, इसमें- बाय द वे स्टार्क इज रियली गुड। मैं इसमें क्यों कह रहा हूं कि वो मैक्सवेल अच्छा कर सकता है, उसकी रीज़न ये है कि जब उसकी बारी आनी है तो उस वक्त स्पिनर ही कर रहे होने हैं, क्योंकि ऊपर से स्पेल निकल चुके होंगे फास्ट बॉलर के। वो ओबियसली ये तो वो बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि कोई अनारी कप्तान नहीं है, वो उसके लिए फास्ट बॉलर लगाएगा। एक बात, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन आपको ये पता ना कैचेस छूटे थे और और अगर वो कैचेस हो जाते तो वो नक्शा दूसरा होता उस वक्त। लेकिन दिस इज इंडिया, मेरे ख्याल में इनकी फील्डिंग अफगानिस्तान से बेहतर है, तो मैक्सवेल को भी बहुत एहतियात के साथ काम करना पड़ेगा। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट इनिंग्स, बिकॉज आई थिंक उससे सुपर्ब इनिंग्स मैंने नहीं देखी, लेकिन फैक्टर्स तो होते हैं ना। मगर साहिर भाई मुझे एक चीज़ बताएं, आज के 5 साल बाद जब आप कभी दोबारा बैठ के वर्ल्ड कप हो रहा होगा तो आपको ये याद रहेगा? नहीं, बहुत कम लोगों को याद रहेगा कि मैक्सवेल के 2 कैच गिरे थे। वो कहेंगे उसने 200 स्कोर किया था। सर किसी को भी याद नहीं होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि ये तो गेम का हिस्सा है, कैच छूटते हैं तो कोई स्कोर करता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है इतनी बड़ी। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्या इंडिया भी फील्डिंग वैसी ही करेगा? नहीं, ये तो खैर पॉसिबल नहीं है कि उनकी फील्डिंग उनसे बहुत बेहतर है। वो तो उस बेचारे को हर दफा वो छुपाते हैं उधर। उसने 2 कैच वहाँ छोड़े हैं और दोनों मैच हारे हैं वो। तो ये तो नहीं होएगा। वो ऐसे नहीं कहते कैचेस विन मैचेस, तो रीजन होता है। एक बंदे ने सवाल किया था कि हमारी हॉकी का हाल क्यों इस तरह हुआ। मैं थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें। सर बिल्कुल। सर, हमारी हॉकी का हाल इसलिए इस तरह हुआ कि हमारी ऑस्ट्रेलिया तरफ सिर्फ 3 है। जी जी, 3 या 4 होंगी ज़्यादा मैक्सिमम। और अगर आप हॉलैंड में चले जाए ना, मैं जल्दी से बताता हूँ, वहाँ क्लब 300 क्लब के पास ऑस्ट्रो टर्फ है। हम इसलिए पीछे रह गए कि हमने उस पर काम ही नहीं किया। जब आप एक कारपेट पे भागते हैं और ज़मीन पे भागते हैं, बड़ा फ़र्क होता है। तो यही हाल हमारा क्रिकेट का है कि हम
कब से मैं कह रहा हूँ कि अपनी ग्राउंड ठीक करें, आपकी अभी तक फील्डिंग इंप्रूव नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी चीज़ों पे काम कर नहीं रहे, तो मॉडर्न क्रिकेट में कहाँ से जाएंगे आप। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाएगा कहीं नहीं, द ट्रांसमिशन कंटिन्यूज। जब वापस आते हैं तो आपकी कॉल्स भी लेंगे और इन दोनों से फाइनली पूछेंगे कि इनकी टीम्स कौन कौन सी हैं, कौन जीतने वाला है। बाय द वे टॉस भी अब होने वाला है, तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि क्या सिलसिला होता है। विल बी राइट बैक। All right, G, once again, welcome back to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphone and brought to you by Zameen.com. Har pata, hame pata hai. This is the second hour of our transmission. Of course, we're taking your phone calls also. Let's talk to Abdul Bhai and Salim Saab. But let's go to the ground first. Jहाँ टॉस हो रहा है। वाओ, अच्छा, जब जिस वक्त पैट कमिंग्स ने ये फैसला लिया है तो उस वक्त आपका चेहरा देखने वाला था। मतलब इट्स सरप्राइजिंग टू मी ऑल्सो। बहुत सरप्राइजिंग है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। सर, हाउ डू यू सी इट? बहुत ही शॉकिंग मेरे लिए तो डिसीजन है ये कि एक तो इनके लिए ब्लेसिंग हुई है डिस्गाइज में कि ये टॉस जीत गए हैं। हाँ। और हर बंदा यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉस जीत कर ये बैटिंग करेंगे। और वो खुद कह रहा है ड्राई विकेट है। नहीं, जिस वक्त सबसे बड़ी बात क्या, जिस वक्त पैट कमिंग्स ने ये कहा है कि हम बॉलिंग करेंगे, बॉल फर्स्ट, पूरा स्टेडियम एकदम से एक रोर उठा है। वो इंडियन बैटिंग वो देखना चाहते हैं कि इंडियन को पहले बैटिंग करते, रोहित शर्मा को, कोहली को देखना चाहते हैं। और एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया ने भी वही किया, उनको बैटिंग दे दी। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो चेज़ करने में इनमें क्या चीज़ है इनके माइंड में कि किस तरीके से ये चेज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया को इन्होंने पहले बैटिंग की दावत दी है तो इसका मतलब है कि जो पिच है वो बहुत ज़्यादा फिर वो फेवर कर रही है स्पिन बॉलिंग को। मगर फिर भी इनका डिसीजन इसलिए ठीक नहीं है कि वो इनके पास स्पिनर भी अच्छे नहीं है। अगर तो चलो हमारे जो कंस्पिरेसी इन्वेंटर्स है ना, वो शुरू हो जाएंगे कि तो मिली भगत है, दिस इज व्हाट इट इज, इस तरह की कोई बात हो जाएगी। मिली भगत तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, सवाल ही नहीं। बड़ा स्ट्रेंज एक डिसीजन है क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया अभी तक इस टूर्नामेंट के जितने मैचेस खेले वैसे ये क्या सोच के इन्होंने बैटिंग की है, बॉलिंग की है। ये अभी मेरा ख्याल है कि एक ब्रेक लेना पड़ेगा, उस पर सोचना पड़ेगा कि इन्होंने क्योंकि हमारा तो ये 100% ही माइंड बना के आए हुए थे कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। और बैटिंग क्योंकि ड्राई पिच है और ड्राई पिच पे बैटिंग करना बड़ा आसान होता है। देखिए, मे बी उनके जहन में, पैट कमिंग्स के जहन के अंदर ये हो कि शाम को शौक देना। नहीं, ये एक चीज हो सकती है सर, एक चीज हो सकती है यार, ये बीच में से कोई चीज ना आप निकालना। अच्छा, नहीं भाई, एक चीज ये है कि देखें, क्योंकि काफी देर से हम यही बात कर रहे हैं कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है इस पे विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर होगा। तो फिर तो उनको रात को फायदा होना चाहिए था। आप सारा पूरे, अगर ये हो सकता है कि जो अभी 2-3 दिन से ये कवर के अंदर रही है, पिच सेफ रही है और उस पर जो डंपनेस आ चुकी है, अर्ली ऑन जो मॉइस्चर है, आपके ख्याल में सुबह को उन्होंने धूप नहीं लगाते होंगे इसको? धूप ये भी उन्होंने देखा हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार रऊफ कि वो सुबह को धूप ना लगाए। क्योंकि अगर आपके पास स्पिनर्स ना हो और आप फिर इस तरह का डिसीजन लें कि आप अर्ली ऑन बॉलिंग करें, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा स्ट्रेंज डिसीजन है। या तो उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी बॉलिंग लाइन पे जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं। मेरा ख्याल में उनको बॉलिंग से ज्यादा अपनी बैटिंग लाइन पे कॉन्फिडेंस है। उनको ये लग रहा है ग्लेन मैक्सवेल आज भी वही करेगा जो उसने पहले किया था अफगानिस्तान के अंदर। बट दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन, वेरी स्ट्रेंज डिसीजन। हालांकि उनको अपनी बॉलिंग पे ज्यादा होना चाहिए था मान, और अंडर लाइट्स और अंडर लाइट। That's what I'm saying. I mean, you've got Hazelwood, you've got Stark, you've got Cummings, you've got Adam Zampa. तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता था। रात को देखें, अगर थोड़ा बहुत विकेट स्लो भी था ना, तो रात को ड्यू फैक्टर की वजह से उनके बॉल निकलनी थी। अब ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी अजीब ही सरप्राइजिंग सी है। हो सकता है उनके लिए बेहतर हो, मगर बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये डिसीजन अच्छा नहीं है। लेकिन सलीम भाई, उसी तरह का डिसीजन मुझे लग रहा है 99 की, जिसमें आप अक्सर बात करते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था और आपका फैसला हो चुका था रात को मैनेजमेंट का कि आपने सुबह टॉस जीत के पहले करनी है बॉलिंग। मगर फिर आपने एक ऐसी मॉइस्चर वाली पिच पे जिस पे आपको लग रहा था कि बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल है, आप लोग टॉस जीते और वहाँ पर आपने फैसला किया पहले बैटिंग का और 120-25 पे पाकिस्तान की टीम। वो तो एक अकेले बंदे का फैसला था ना, टीम मीटिंग में तो डिसाइड हुआ था कि हमने बॉलिंग ही करनी है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये भी मुझे लग रहा है ये अकेले बंदे का डिसीजन मुझे लग रहा है कि कोई समझ नहीं आ रही। देखे ना, ये फायदा उठाना चाहिए। और बड़े मैच में साहिर भाई, ये बड़े मैच में गलतियां नहीं, प्रेशर बड़ा होता है अगर आप। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसे जैसे आई थिंक वो अपना ना बॉलर्स पे बड़ा कॉन्फिडेंस ले रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं कि मर्लियन उनकी विकेट्स निकालेंगे, एंड मुझे नहीं पता वो इस बात पे रिलाय कर रहे हैं कि डंपनेस थोड़ी सी अभी होगी या नहीं होगी, लेकिन आई थिंक ऑब्वियसली वो स्पिन पे रिलाय नहीं कर सकते। तो आई थिंक उनके पास जो सीमर्स की लाइन है जिसके अंदर हेजलवुड है, स्टार्क है, खुद कमिंग्स है, आई थिंक वो उस पर रिलाय करके कह रहे हैं कि हमने किसी न किसी तरह से इंडिया को कंटेन करना है 270 275 के उस पर, और उसके बाद फिर। मगर साहिर भाई अगर सुबह को बॉल निकली ना उस तरह, देखिए ना, उसके लिए भी तो ज़रूरी है ना कि थोड़ा सा बॉल कैरी तो करना चाहिए ना। ट्रू। अगर आपका पिछले मैच की तरह बाउंस ही नहीं हुआ, आप अगर तो वो ये सोच रहे हैं कि जो सेमीफाइनल में उनकी बॉल निकली थी शुरू में, तो तब तो समझ आएगी कि यार ये बड़ा अच्छा डिसीजन। आई थिंक पहले 5 ओवर्स के बाद ये पता चल जाएगा कि कमिंग्स का ये डिसीजन क्यों था। और पहले 15 ओवर्स के बाद इसमें शायद एक और चीज़ है कि लास्ट मैच जो हुआ था ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, इन्होंने बिल्कुल इसी तरह की स्पिन पिच बनाई थी और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड की थी बॉलिंग। जो अर्ली ऑन इनके 3 स्पिनर इंडिया ने खिलाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने जब ड्राई पिच था ना, बिल्कुल ड्राई, उस पर जो बैटिंग लाइन थी ऑस्ट्रेलिया की उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल किया था, इनको जल्दी आउट कर दिया था उन्होंने। मे भी ये भी एक फैक्टर हो सकता है उनके माइंड में कि ड्राई पिच पे स्पिनर्स हमें। उसमें आप देखें, उसमें विराट ने स्कोर किया था, अगर विराट का आते ही वो कैच पकड़ लेता तो खत्म हो जाता, तो खत्म हो जाता। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो, लेकिन ये वो फैक्टर वही है इनके दिमाग में जो लास्ट मैच हुआ था, मगर मेरा ख्याल है कि बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन लिया। स्ट्रेंज तो लिया है बट इट्स अ ब्रेव डिसीजन। स्ट्रेंज तो बिल्कुल है बट इट्स अ ब्रेव डिसीजन। इज इट गोना पे ऑफ, ये नहीं पता, हो सकता है वो पे ऑफ कर जाए, हो सकता है पे ऑफ ना करे, बिकॉज मैं शुरू दिन से हम एक ही बात करें कि अगर किसी टीम को भी इंडिया को हराने की सलाहियत है, इंडिया से अगर कोई आ सकता है और इंडिया को वाकई शिकस्त दे सकता है, तो वो टीम ऑस्ट्रेलिया है। वो आई थिंक दे ब्रेव 2 मैचेस हारने के बाद कंटिन्यूसली, उसके बाद वो वापस आए हैं। अफगानिस्तान का जो मैच था, इवन दो कि वो ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स की वजह से जीते, लेकिन अफगान मैच के अंदर भी तकरीबन दे वर आउट। मेरा ख्याल है साहिर भाई, वो थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है ना, वो इस चीज़ से डरा हुआ है कि इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। ओके। और वो चाह रहा है कि ये चेज़ शायद अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है सिर्फ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि उस चीज़ से डरा हुआ है कि कहीं हमने जितना भी स्कोर किया, 300 भी करते हैं तो ये चीज़ अच्छा करते हैं। तो व्हाट ही वांटेड टू डू वाज ही वांट टू मेक श्योर कि वो इंडिया को 250 से 270-80 के दरमियान वो आउट कर लें, और उसके बाद वो जो है टारगेट उसको वो चेस कर लें। दैट्स व्हाट हिज माइंडसेट इज। उसकी मेरा ख्याल रीज़न ये है कि वो चाह रहे हैं अर्ली विकेट गिरे और इनके दिमाग में कोई टारगेट जब नहीं होएगा तो मे भी ये थोड़ा स्लो खेले और स्कोर कम हो। इसके अलावा और कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रही कि बैटिंग की वजह से वो। जब मैं वापस आऊंगा तो पूछूंगा कि वो क्या स्कोर है। अब तो डिसाइड हो चुका है, इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, और डिसाइड हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रहा है। तो इंडिया कितना स्कोर पुटअप करेगा कि ऑस्ट्रेलिया को चेस करना मुश्किल हो। ब्रेक के बाद Once again, जी वेलकम बैक। इंडिया के जो 11 प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शिव कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव एंड मोहम्मद सिराज। दिस द इंडियन 11। व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए मेरा ख्याल है कि अनचेंज टीम है, और जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चेंज करनी भी नहीं सिर्फ ये अर्ली ऑन जो पांड्या थे वो इंजरी की वजह से बाहर हो गया, मगर जब उनको रिप्लेस किया उसने शामी ने, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में। आप बात और करते रहिए, उन्होंने मैं एक बड़ा अपनी परफॉर्मेंस से एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था शामी ने, तो अभी तक वो इसी टीम का हिस्सा है। मगर अगर आप दूसरी जानब देखें कि ये जिस तरह के डिसीजन हुए हैं, जो ये डिसीजन लेते हैं पैट कमिंस और एक दूसरे कैप्टन है जो इंग्लैंड के बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट में, ये बड़े स्ट्रेंज किस्म के इन्होंने डिसीजन लिए है दोनों ने, कमिंस ने और जो है बेन स्टोक्स दोनों ने, और इनके जो डिसीजन थे उन पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ। मगर बाद में जब इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस है, जो इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी दोनों की, उससे इन्होंने बिल्कुल पूरी दुनिया की जो क्रिकेट कम्युनिटी थी उसको बिल्कुल एक हैरत में डाल दिया था। जिस तरह यहाँ पे बेन स्टोक्स ने रावलपिंडी में, जिसमें 600 से प्लस रन हो रहे थे टेस्ट मैचेस में, वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को आखिरी दिन डिक्लेयर करके दे दिया था कि आप बैटिंग करें, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान को ये आउट कर लेगी ऑस्ट्रेलिया की ये जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन है इस रोड पिच पे, मगर उन्होंने पाकिस्तान को आउट करके सीरीज जितवा दी। इसी तरह ये पैट कमिंस है, ये भी इसी तरह के बड़े स्ट्रेंज डिसीजन लेते हैं, मगर ये जो डिसीजन है ये वाला फाइनल वाला, ये मोस्ट स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग डिसीजन। आई फील फॉर यू, कोई बात नहीं, अभी इट्स येट टू बी सीन, बिकॉज आई थिंक देखें कभी कभी यू हैव टू गो अगेंस्ट द ग्रेन, यू हैव टू गो अगेंस्ट द विंड। तो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पैट कमिंस हैज डन। उनको 2023 में जो मैच हुआ था, उनको अपना वो मैच याद है, 199 रन थे,
और बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर सके थे 199 पे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई थी और पहले बैटिंग की थी। तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो आई थिंक शायद उनके जहन में वो है कि हम कर ना सकें तो हम पहले चेज करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। कितना बड़ा टोटल रखना चाहिए इंडिया को कि ऑस्ट्रेलिया चेज ना कर सके? सर वो जो आप बात कर रहे हैं सर भाई, वो गीला विकेट था। इस जगह तो गीला विकेट सर नहीं मैं तो है। बात कर रहा हूँ सर, वो कमिंग्स की बात कर रहा हूँ सर। शायद, मुझे नहीं पता सर, मैं उसका दोस्त नहीं हूँ सर। मैं जेन्युइनली नहीं जानता उसे। मैं तो सिर्फ अपने कयास आराइयाँ दे रहा हूँ। सहर भाई मेरा मानना है कि बड़े मैच में ना आपको इसमें कोई शक नहीं, अगर विकेट ठीक हो, हाँ, गीला ना हो, ब्रेव डिसीजंस लेने होते हैं, तो आपको बैटिंग ही करनी चाहिए। क्योंकि जब आप प्रेशर डालते हैं किसी टीम पे भी स्कोर का, उसमें फाइनल वाले मैचों, सेमीफाइनल, फाइनल में बड़ा प्रेशर होता है जब एक दफ़ा आप स्कोर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में आज अगर 300 करती है इंडिया, हाँ, आप जो मर्जी हो, वो मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए फिर उसको करना पड़ना है। वो बेशक आपके पास जितनी बड़ी टीम होए, वो एक प्रेशर जो होता है अच्छा, ना। अभी आपने ये कहा था कि जो डिसाइड होता है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर होता है कि सुबह अगर हम टॉस जीतते हैं तो क्या हम करेंगे। तो आपके ख्याल में ये ऑस्ट्रेलिया का मुत्तफ़िका फैसला होगा कि हमने बॉलिंग ही करनी है? ऑब्वियसली सहर भाई, इससे तो वो जा नहीं सकते इधर। ये कोई हमारी टीम तो है नहीं कि हम आप सुबह जाके अपना डिसीजन कर लेंगे, क्योंकि ये तो एक मैनेजमेंट की डिसाइड करती है। रात को जो मीटिंग हुई होगी, सुबह तो नहीं हुई होगी उनकी, रात को जब उन्होंने टीम मीटिंग हुई होगी, उसमें उन्होंने विकेट को एक दिन पहले देखा होगा। बिल्कुल सही। और फिर उन्होंने डिसाइड किया होगा कि सुबह क्या करना है। और उसमें एक बंदा अकेला कप्तान नहीं होता, उसमें सारी टीम बैठी होती है। और फिर आपको उसमें अंदाजा ही नहीं आपने मासूमियत में क्या कह दिया। आपने मासूमियत में बड़ी कमाल बात की है। जी बताएं। आपने वो कुलिया समझा दिया जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस बुरी होती है। आप कह रहे हैं टीम में एक कप्तान होता है, हमारी में 11 है, तो आपने वो कुलिया समझा दिया सीरियसली। अभी आप मुझसे मैं जितना मर्जी एक्साइटेड हो जाऊं आज के गेम के लिए, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पिंच जरूर है दैट पाकिस्तान इज नॉट इन द फाइनल्स। I just, even though कि I know may the best team win and I know India बुक्स में भी और फिजिकली भी बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया बुक्स में भी फिजिकली भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी एज अ पाकिस्तानी आपको कहीं ना कहीं ये पिंच जरूर होगा। सर भाई असल में जो आपने बात की है ना, वो जो शायद मासूमियत में निकल गया, मासूमाना सवाल निकल गया। जी, बादामी, we love you man, we love you। हाँ, आप देखें, सिवाय हमारी टीम के अलावा हर टीम जो है ना, वो कप्तान जो भी डिसीजन लेता है उसके बैक करती है जो टीम में डिसाइड हुआ होता है। जो टीम में डिसाइड हुआ होता है, ये नहीं कि सुबह आके वो अपना डिसीजन ले ले, तो आपकी टीम उसको बैक करती है, क्योंकि आप सब ने मिल के वो डिसीजन लिया होता है। वो ये नहीं होता कि सुबह आके कप्तान, आपने कभी नहीं देखा होगा, हाँ सीनियर प्लेयर ज़रूर जाके कप्तान को अगर उसको समझ आती है तो बताता है। वो ये नहीं होता कि 11 के 11 बंदे अपनी मर्जी से फील्डिंग खड़ी कर रहे होते हैं। विकेट कीपर पीछे से कुछ इशारे कर रहा होता है, कप्तान वो चुप करके खड़ा होता है। तो ये हमारी टीम में ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, बाकी टीमों में आपको इस किस्म की चीज़ें नज़र नहीं आती। आ जाए भोले भाई, आ जाए भोले साहब आ गए आज। माशाल्लाह, बहुत अरसे बाद भोले भाई की मुलाकात हो रही है। बोला इतना बोला भी नहीं है, एने उतार के है। बोले कि जब 10 प्रेडिक्शन गलत साबित हुई ना, रॉन्ग साबित हुई है, तो उसके बाद बोला आज। थैंक यू। बोला जी, सुना है आपको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, खाना ज्यादा खा लिया था, किसी दूसरे की शादी पे चले गए थे। जी, अब अपनी तो हो नहीं सकती, अब दूसरे की शादी पे ही जा सकता है बंदा। लाइए, क्या लिखा है आपने, देख लूं? मोहल्ले की एक शादी थी, देख लेता हूं मैं। ओके जी, इन्होंने लिखा है, चलो इंडिया जीत गया क्योंकि बोले ने ऑस्ट्रेलिया लिखा। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच की टीम है, इंडिया की जीत मैं नहीं पढ़ूंगा, चीटिंग से मुमकिन है। गलत कह रहे हैं आप, ये मुझे बात कभी नहीं समझ आएगी, और मैं किसी के लिए भी, मैं सबको ये कहूंगा, इफ यू आर लूजिंग यू डोंट हैव टू बी सावर अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। ये मशवरा मुझे लग रहा है रऊफ से लिया है ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीतेगी। मेरी फेवरेट टीम, आपकी फेवरेट टीम, आपकी और आपकी भी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान है, हमारी पाकिस्तान है फेवरेट टीम, मेरे बोलेगी तो पाकिस्तान है फेवरेट टीम। हाँ ऑफ कोर्स, 100%। मैं आपको नहीं सर, सॉरी सर, मैं तो जब, हाँ थैंक यू बोले, थैंक यू। मैं तो जब पहले पान खाया था आज,
पहले 10 दिन के बाद से ही मैंने ये कहा था, आई थिंक 2 हफ्ते के बाद से मैंने हमेशा ही बोला हूँ कि इवन दो वी सपोर्ट पाकिस्तान ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तान विल नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मायूस ना वहाँ पे, क्योंकि आगे टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके फाइनल में पहुंच सकते हैं, वो मेरा ख्याल है वो भी बहुत बड़ा। सर मैं मायूस नहीं हूँ, मुझे घबराहट है और डर है। घबराहट किस बात की है कि हमने क्रिकेट का वही हाल ना कर दें हम जो हमने हॉकी का कर दिया, और डर इस बात का है कि कहीं बाबर आजम के खिलाफ चीज़ें ऐसी ना हो जाएं कि बाबर को कुछ दिन के लिए बाहर बैठना पड़े, इतना प्रेशर दिया जाए। बिकॉज यू नो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, हो सकता बाबर ने खुद इस्तीफा दिया हो, आई डोंट सी इट एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल डोंट सी इट दैट वे। जो आपके इतने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स विद बाबर, प्लीज डोंट। मेरे लिए हर खिलाड़ी पाकिस्तान का उतना ही इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना ये जितनी चीज़ें बाहर आई हैं ना, ये सब क्लोज डोर होनी चाहिए और अपने अंदर होके ख़त्म होनी चाहिए, इसको बाहर नहीं आना चाहिए। आपने जो सवाल मासूमना कर दिया ना कि उसको बाहर ना बैठना पड़े, ये मैं आपको बताऊं, सारी जितनी भी लॉबी है ना इस वक्त, हाँ। जो इस वक्त अनाउंस हुई है, वो सारी की सारी बाबर के अगेंस्ट है, ये याद रखिएगा। Alright, एक ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back। कुछ बातों में मैं हिल जाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करे और पाकिस्तान के हर शहर की हिफाजत करे, एंड देन दैट्स अबाउट इट। Alright जी, मैच शुरू हो गया है। रोहित शर्मा की आप बैटिंग देख रहे हैं, वो नहीं रुक रहे, और बाकी आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देख रहे हैं, वो भी नहीं रुकेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक सर? नहीं देखें, दोनों तरफ से आग बराबर लगी, फाइटिंग स्पिरिट तो नजर आ रही है। आज मैच बड़ा अच्छा होने वाला है, ये मुझे पता है। मैच तो ऑब्वियसली अच्छा होएगा, फाइनल मैच कभी भी वन साइडेड तो होता नहीं, हाँ, उसमें एक्साइटमेंट तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो आज अगर आप ये देखें कि उनकी फील्डिंग कितना वो कमाल, अभी 2 चौके 2 बाउंड्रीज जो थी वो रुकी हैं। अच्छा एक और बात है, बॉल थोड़ा सा लो भी रह रहा है और पूरा कैरी भी नहीं कर रहा। नहीं, वो तो साहिर भाई आपको मैंने कहा था कि वो विकेट तो कभी भी वो नहीं बनाएंगे जो आप देखें आज उसने रोहित ने ड्राइव मारी है, हाँ, वो ड्राइव जो है वो कैरी नहीं की, बिल्कुल ठीक, स्लिप में, तो ये कितनी स्लो विकेट होगी। हालांकि नॉर्मली तो आप रोकते हैं तो कैरी कर जाता है, हाँ, उसने हल्की सी पुश भी किया और कैरी नहीं किया। सर अगर आप इस वक्त हिंदुस्तानी कप्तान होते तो आपके जहन में क्या होता, और आप अगर पैट कमिंस होते, आप हैं भी, तो क्या होता आपके लिए? पहले मैं सर आपसे पूछूं। सर मैं मैच जीतने की सोचता। वेरी सिंपल आंसर, मैच जीतने की सोचते। देखें ये जो रोहित कर रहा है वो, हाँ, देखें वो अटैक कर रहा है, जो हमेशा मैं कहता हूं कि सर अल्हम्दुलिल्लाह उसने कभी नहीं सोचा। हाँ, वो नहीं सोचा, मगर उसकी थ्योरी यही है। बट सर आप ये देखें कितना कॉन्फिडेंस उसको अपने बाकी लोग आने वालों पे कि अगर मेरी विकेट पहले भी लूज हो जाती है, मैं एक तरफ से अटैक करूंगा और शुभमन जो है इसको वो रोकता रहेगा। साहिर भाई ये देखें तरीका भी यही है ना वनडे क्रिकेट इसमें कि आप एक साइड से अटैक करें और बाकी नॉर्मल क्रिकेट खेलें। हाँ। अगर विकेट गिरती है तो फिर वैसे विराट ने आके बारी लेनी है, वो फिर लंबा लेके चलता है। अगर इसमें अगर अटैक करके वो निकल जाते हैं रोहित जैसा स्कोर हो जाएगा, फिर तो देखें ना, फिर वो लंबा स्कोर होगा। तो वो यही कोशिश कर रहा है कि वो अटैक करने को, और उस बॉलर को कर रहा है जो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हेजलवुड सबसे अच्छी है, माय गॉड, और निकल के मारा, और एक ऐसी बॉल जो इन लाइन थी, अच्छी बॉल थी, उसको उसने मिड विकेट पे चार दिया। साहिर भाई उसकी रीजन ये है ना कि वो लाइन उसकी खराब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी लाइन छोड़नी नहीं है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सलीम भाई, जिस तरह आप हैजलवुड ने इस टूर्नामेंट में बॉलिंग की है इस वर्ल्ड कप में, और थ्रू आउट बॉलिंग कर रहा है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, और इसकी एक बिल्कुल एक एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ है। वो एक चैनल में बॉलिंग करता है, अगर वो चैनल पे बॉलिंग करता रहेगा तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा इंडियन बैटिंग लाइन को। उसमें डज नॉट मैटर कि विकेट किस किस्म की है, फ्लैट है, स्लो या कुछ है, उसने अपनी लाइन एंड लेंथ मेंटेन करनी होती है। मगर अब जो कर रहे हैं ये रोहित शर्मा, ये एग्जैक्टली देखे ना कि इस पे स्टार्क पे वो अटैक नहीं कर रहे, स्टार्क को वो डिफेंसिव खेल रहे हैं, और जो हैजलवुड पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि उनकी लाइन एंड लेंथ खराब हो और जो बाकी आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए परेशानी ना हो। हाँ। इसलिए वो उनकी जो अच्छी बॉल है उनको भी चला रहे हैं। So if you were Cummins, what would you be thinking? उससे देखा सबसे पहले तो यही कोशिश होती है कि जो इनके मेन जो बैट्समैन है, जिस तरह रोहित शर्मा है या विराट कोहली है, इनकी विकेट ले, क्योंकि इनकी विकेट बहुत वाइटल होगी। कभी-कभी सॉरी मैं आपकी मुझे कभी-कभी लगता है उन्होंने गलत करियर अपनाया।
इनको ना, ही शुड बी इन शो बिजनेस, ही शुड बी, ये पाकिस्तान के लेजेंडरी कॉमेडियन होते हैं, बिकॉज जो कॉमिक टाइमिंग आप किए ना, जो कॉमिक, चुपके से ना, मुझे आप लोगों ने सुना ही नहीं। मैंने कहा जी आप पैट कमिंग्स होते तो क्या करते, पीछे से कहते हैं दुआ कर रहे हो। मेरी बात सुने, उन्होंने गलत भी नहीं कहा। जिस तरह का उससे डिसीजन लिया ना टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, तो इसमें अब दुआ ही बनती है। तो इस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। सरफराज ने भी एक बार ऐसा एक डिसीजन लिया था। I remember that. सरफराज ने भी लिया था, वो डिसीजन उल्टा हो गया था उसके लिए। I love the guy. ये जो बात कर रहे हैं ना सर भाई, वो देखें उस पर अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि बाकी बॉलर्स जो है ना वो आपको मौका देते हैं, आगे पीछे बॉल करेंगे। हाँ। आप देखिएगा स्टार्क वो आगे बॉल करने की कोशिश करता है, बाउंसर करेगा, उसने कहीं उसने कंप्यूटर से जैसे बॉल नहीं निकलती, हेजलवुड ने एक ही जगह पे बॉल बॉलिंग और ये बात याद रखिएगा, जैसे कंप्यूटर नहीं निकलता मारता है, इसी तरह से रोहित भी मारेगा। It doesn't matter to लेकिन him. उसने जितना मर्जी मार ले उससे जगह नहीं छोड़नी है। हाँ, जगह नहीं ठीक है, वो एक बॉलिंग मशीन समझ ले कि इसकी एक्यूरेसी डेड एक्यूरेट है। वो उसने अपनी जगह पे ही बॉलिंग करनी है और वो विकेट भी लेगा। क्योंकि ये होता है कि जब एक बॉलर का रिदम बना और पूरे इवेंट में विकेटें ले रहा हो, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप उस पर अटैक करके उसको साइड कर दें। उसकी हैबिट डेवलप हो चुकी होती है, उसने विकेट लेनी ही लेनी है, मेरा ख्याल है। आई थिंक ये कंट्रोल और ये जो फिनेस आता है, ये उस वक्त आता है जब आप क्रिकेट मुसलसल खेल रहे होते हैं, आपको लंबी क्रिकेट, और आपको मैच के टेम्परामेंट का पता है। क्योंकि देखिए हेजलवुड के अलावा कोई भी बॉलर हो, इस वक्त पूरा स्टेडियम इंडिया के साथ है। वो अंदर जो जंग कर रहे हैं वो 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं खेल रहे हैं, वो इस वक्त पूरे इंडिया के साथ खेल रहे हैं, पूरे मीडिया के साथ खेल रहे हैं। बिकॉज अगर आप मीडिया को भी सुने, ट्विटर को भी देखें, किसी और चीज को भी देखें, तो वो सब का सब इन फेवर ऑफ इंडिया है। तो दे आर दी अंडरडॉग्स। तो उस वक्त अपनी लाइन और लेंथ लूज करना बड़ा आसान है। ये आप सिर्फ उसी सूरत में कायम रख सकते हैं जब आपने खेला हो, जब आपने कायम रखा हो। और ये एक इट्स अमेजिंग, आई ऑनेस्टली फील ये फील्डिंग जो है ना, ये कमाल है आज। जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ करेंगे। हाँ, जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो फील्डिंग है, अगर इसी तरह इन्होंने जारी रखी तो ये मैच जितवाने में अहम किरदार अदा करेगी। नहीं, ये जारी नहीं रहेगी, ये कोई हमारी फील्डिंग थोड़ी है। नहीं, अच्छा दूसरी बात, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया मैच खेल रहा है और जीतने के लिए खेल रहा है। पॉजिटिव बॉडी पॉजिटिव। साहिर भाई देखें, फाइनल मैच हो रहा है, कोई ये आम मैच तो नहीं है कि आप वर्ल्ड कप का एक मैच खेल रहे हैं। ये एक फाइनल है और इसमें तो दोनों टीमों की तरफ से वो देखें ना, जब खत्म होएगा मैच, अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है या इंडिया जीती है, उन प्लेयर्स का सारी जिंदगी शायरी का शौक है बहुत है सुनने की हद तक। नहीं, अभी आपने कहा ना कि आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं, हम सुनते नहीं, छोड़ दीजिए मुझे शायरी को। मैं तो मुझे तो नहीं, आप बहुत अच्छी करते हैं। हम भी तो फाइनल में कई मरतबा पहुंचे, तो फिर मुझे उस बात पे याद आ गया था कि हम भी जीतने के लिए खेलते हैं। याद माजी अजाब है अरब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो मतलब छीन लेते हैं आपको, हम इधर आ जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैच पे आ जाए, मैच की बात करें, क्योंकि फिर बात दूर निकल जाएगी। हमने तो हर जगह ही कॉम्प्रोमाइज किया है सर। और अभी एक बार आपको और मुबारकबाद दे दूं, ये किस्त आ भी जाए आपको जो डॉलर की आनी है, इसके बाद जो महंगाई ने होना है, ये भी आपको अंदाज़ा नहीं है, अभी अंदाज़ा नहीं है। अभी और होना है सर, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट, रियली टफ। बट एनीवेज, हमने इससे पहले भी कुछ नहीं किया सिलसिले में, हम इसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे। हम वो लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कब एड आए, कब हम अपनी चीज़ों को कर सकें। और जब एड आती है तो अपनी चीज़ों से मुराद वो होती है जो उस वक्त एड ले रहे होते हैं उनके मालिकान, वो एड लेके चले जाते हैं और आप पे कर्जे का बोझ बढ़ जाता है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द मैच, सर क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, मेरी प्रेडिक्शन तो ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया, ओके। जिस तरीके से वो आया नीचे से, उन्होंने पहले 2 मैचेस हारने के बाद और एक उन्होंने अपनी फॉर्म का सिलसिला जारी रखा और फाइनल में पहुंचे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है पॉजिटिव है, जो मैच टू मैच उनकी इंप्रूवमेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी टफ टाइम देंगे, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आपको आज बेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद दूसरी तरफ से अगर आप देखें मिचेल मार्च, अब ये डेविड वार्नर। टॉस के बाद तो मेरा ख्याल थोड़ा सा डिसीजन थोड़ा सा अच्छा, अभी विराट ने एक 6 भी लगाया अभी इसीलिए वो 6 देख के तो थोड़ा सा राउफ ने ट्रैक चेंज किया है। नहीं, ट्रैक देखने को मिलेगा 6 और उसके बाद 4, 6 और 4 एक साथ। मेरा ख्याल है राउफ जो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया ना, उस पर थोड़ा सा नजरसानी करो यार। अच्छा, उसमें अच्छा सलीम भाई, इसमें बात ये है कि जिस तरह मुझे रोहित को देख के ना सईद भाई बड़े याद आते हैं। और कमाल यार, वो भी कमाल खेलते थे इसी तरह से, उनको भी किसी बॉलर की फिक्र नहीं थी। सईद भाई तो आप दुनिया में
बात याद आ मुझे खान साहब वाली बात बड़ी मजे की लगती है, बड़ी मजे की लगती है। आपको ये वाकया शाम में सुनाएंगे, सुनाना तो सुना दीजिए, वो बड़े मजे की बात। शाम में सुनाते हैं जी सर। सईद भाई की तो क्लास ये थी कि आप उनको बेस्ट लाइन पे बॉल करें और आपको विद इन सेकंड पता चलेगा बॉल आधे ग्राउंड में पड़ी है। वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी टाइमिंग थी और लगता नहीं था कि ये छक्का मार देंगे और इतना बड़ा मारेंगे कि आधे स्टेडियम की छत पे जाएगा। वो वही वाली बात ना कि स्किपर इमरान खान ने उनको उसको कहा सईद को कि सईद तूने हिट नहीं मारनी, तूने हिट मारी तो मैं पाकिस्तान भेज दूंगा। मैंने कहा नहीं जी मैं अब नहीं मारूंगा। मैंने कहा तू 50 ओवर के तू 20 रन कर, मुझे कोई फिक्र नहीं। वो 1 ओवर 2 ओवर उसने आराम से, तीसरे बॉल पे उसने एल्डरमैन को दिया छत पे छक्का सिडनी में। ओ खान साहब कहते हो एक बंदर होते छाल ना मारे, तो रोहित तो रुक नहीं सकता भाई, उसने छक्का मारना ही मारना। I think that's the beauty of these cricketers, whether it was Viv Richards, the legend, जो सबसे बड़े थे, जो आई थिंक मोजिद हैं इस काम के, बिकॉज वो आदमी इस काम का मोजिद था। मैंने विव रिचर्ड्स को, मेरी एक मेमोरी है विव रिचर्ड्स की, मैंने विव रिचर्ड्स को बगैर पैड के, वो एक शॉर्ट्स पहने हुए थे, मेलकम मार्शल को खेलते हुए देखा है बगैर पैड्स के। नहीं तो फिर आप नहीं सर, इट वाज कराची नेशनल स्टेडियम, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं वहां गया था। वी वर ऑल किड्स यू नो, तो सब मिलके वहां चले गए थे। तो हम वेस्ट इंडीज की टीम को देखना चाहते थे, तो हमें कोई ले गए। देयर इज अ विकेट, देयर इज अ विकेट। आउट हो गया ना, मैंने क्या कहा था आपको। कौन यार आउट? ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेंगे ये। कौन आउट हुआ? ये रोहित गिल, शुभमान गिल। ये रुका क्यों? शुभमान गिल सीधा क्या? अफसोस में खड़ा है। कौन अफसोस में खड़ा? गिल। लेकिन ये साहब जो आप बात कर रहे थे ना, ये विव रिचर्ड, सईद अनवर, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, ये सलीम मलिक, जावेद मियां, ये बड़े। ये जब मेरी तरफ देखता ना फिर मेरा नाम ले ले। अच्छा नहीं, आपका नाम लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, वो तमाम लोग, वो तमाम बच्चे जिनको नहीं पता मलिक साहब के बारे में, इनका बाजू टूटा हुआ था, स्टिल प्लेड फॉर पाकिस्तान। अगर आपने ईडन गार्डन की वो इनिंग्स नहीं देखी तो आपने क्रिकेट की एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, बिकॉज ऑनेस्टली जब बाजू टूटा हुआ था, खेल किसके खिलाफ रहे थे? बॉलर को ऑर्डिनरी थे, उसमें था कोर्टनी वॉश, मेलकम मार्शल और बेंजामिन थे। मोस्ट डेडलीस्ट फास्ट। और एज फार एज आपने जावेद भाई का नाम लिया, तो मैंने तो वैसा क्रिकेटर आज तक नहीं देखा है। मुझे लगता है कि जावेद भाई से बेहतर क्रिकेट मैंने कभी किसी को खेलते हुए नहीं देखा। ही वाज एन अनबिलीवेबल मैन, ही वाज एन अनबिलीवेबल प्लेयर। मैं आगे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए कमाल इनका यह था कि उस जमाने में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जो आजकल बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा इजी है और बॉलर के लिए बहुत ज्यादा, ना आप बाउंसर मार सकते हैं, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और बाउंड्री बड़ी थी। बाउंड्री उस वक्त 90 यार्ड्स की बाउंड्री होती थी। उसके बाद आपके 6 फील्डर बाहर होते थे। वो उसके अलावा आपके ऊपर जो बाउंसर की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। जेंटलमैन, आई वांट टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट ट्रांसमिशन के लिए 11 बजे, मतलब इसकी, उसके बाद तो आप फिक्र ना कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप जाके मैच देखिए, 11 बजे रात को मुलाकात होगी। मे द बेस्ट टीम विन। सर आपकी प्रेडिक्शन बता दें, आपसे नहीं ली थी मैंने। मुझे इंडिया। सो सलीम भाई इज सेइंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। आई एम सेइंग मे द बेस्ट टीम विन। दैट्स व्हाट वी वांट। 11 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।